second equation of motion by calculus method. Okay. Yes, sir. Okay. Now try to understand. V is equal to velocity की बात करते हैं. Then what is the formula of V? Velocity V is equal to, हम कैलकुलस मेथड में लिखेंगे. वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. Yes, sir. तो डिस्टेंस मीन्स ds अपॉन टाइम मीन्स dt. ठीक. कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन यानी d का यूज करते हैं. s अपॉन dt. इसको और आगे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी. ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी. ठीक. हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हो जाएगा ना. अब Yes, इसको sir. क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे. क्या करेंगे? इंटीग्रेट करने मतलब Integrate. इसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे. यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 होगा लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा? एस है तो डिस्टेंस है तो एस आएगा. ठीक, क्लियर? Yes, sir. अब Yes. ये क्या हो गया? ds हो गया. ठीक, इज इक्वल टू v. यहाँ पे एक वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी. तो यहाँ हो जाएगा u Yes, sir. प्लस ए टी. u प्लस ए टी इंटू डी टी. अभी यहाँ भी हम इसके डिफरेंशिएशन को अभी हटा देते हैं. ठीक है, अभी नहीं रखते हैं. अभी हम इसकी वैल्यू लिख लिए. इसको इतना लिखा जा सकता है. अभी मान लीजिए Yes, sir. someone is asking that from where you are you find that, then you have to tell them from equation, sorry, from first equation of motion. Motion. From first equation of motion you have to tell that v is equal to u plus at. Okay, you have to tell what? v is equal to u plus at. Okay, Yes, sir. so here in the place of v we write u plus at dt. Now to what? Integrate it. Integrate it. If we want to write this, then we can write what? S is equal to, now open the bracket. If we open the bracket, then what? U is multiplied into dt, and again at is also multiplied into dt. Understand? So it will be u into dt plus what? A is acceleration, that is constant. So a into what? E into dt. Understand? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Now from okay, from this place we have to integrate it. Okay, lower limit 0 and upper limit what? S. Okay, then Yes, what sir. to write?
ds is equal to now here. So the symbol of integration of u into dt. U into dt. Upper limit t, lower limit 0. Okay. Yes, sir. Then here u into dt plus again we through the symbol integration of sorry upper limit t and upper limit t, lower limit 0. Then in this place what a into t into dt. Understand? Yes, sir. Understand? Now Yes, sir. or continue in next page. Now write down, after that we continue. First of all write down immediately. Yes, sir. Okay. After that, what will we find? We have to find in big bracket s, upper limit what? S, lower limit 0. Upper limit s and lower limit 0. Okay. Yes, sir. And again equal to u is a velocity that can be we have to take in outside, so it will be what? U into in bracket t, dt means t, dt means t, upper limit upper limit t and lower limit 0. देखिए u को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे. जब u बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, t बचेगा केवल. और dt मीन्स जब इंटीग्रेशन करेंगे dt का तो क्या प्राप्त होगा, वी हैव टू फाइंड integration of dt means t, upper limit t, lower limit 0. Okay. After that plus a into t. देखिए a आपका एक्सीलरेशन है, बाहर हो जाएगा. a into अब देखिए t और dt हो गया. अब t into dt, dt का t होगा, t ऑलरेडी है तो 1 + 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t²/2. ये कैसे होगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्या हो जाएगा, t² बाई t²/2. ठीक. ये किसमें होगा, ये होगा आपका बिग ब्रैकेट के अंदर. इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर. अपर लिमिट व्हाट, अपर लिमिट इज t. ओके. एंड लोअर लिमिट इज 0. ठीक. गरिमा अंडरस्टैंड.
कैसे? देखिए रफ वर्क में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी ना, यही था। गरिमा, डू यू लिसन साउंड? Yes, sir. देखिए u इज कांस्टेंट, सो वी हैव टू टेक आउट ऑफ दिस, सो u इंटू dt मीन्स जब इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट में मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t इस t बड़े ब्रैकेट में, और अपर लिमिट t हो जाएगा, ठीक, एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. तो यही होगा, बोलिए। Yes, sir. अपर लिमिट इसमें क्या हो जाएगी? t हो जाएगी, Okay. ठीक है। Over limit 0. लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? u इंटू टी मीन्स t माइनस 0, t माइनस 0 का मतलब t, तो ये क्या हो गया? ये आ गया ut। क्लियर? Yes, इसका sir. ut क्लियर हुआ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ at, इंटीग्रेशन ऑफ AT. इंटू dt था ना, at इंटू dt है, बोलिए। Yes, sir. अब देखिए समझिए, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? t, t का करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज t। अब देखिए t इंटू डी टी, जब t इंटू डी टी का मतलब ये है कि a तो बाहर हो गया, दैट इज एक्सीलरेशन, ठीक। अब Yes, बड़े sir. ब्रैकेट में Yes, हमारे पास sir. क्या आया? बड़े ब्रैकेट में आया t की पावर कितनी है? 1 ना, t की पावर कितनी है? 1। 1. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1 ऑलरेडी थी, और हम क्या करेंगे? मैंने बताया था कि पावर इंक्रीज करते हैं, 1 इंक्रीज कर दिए, और अपान जितनी पावर होगी उतना अपान में लिख देते हैं। तो क्या बना? टी स्क्वायर अपॉन 2 बना। बना कि नहीं बना? Yes, sir. ये कब लिखते हैं? ये जब आपका दिया रहे t इंटू डी टी। क्या दिया रहे? t इंटू डी। DT. अगर t इंटू डी टी है इंटीग्रेशन में, तो इसका क्या बनेगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा। क्या बनेगा? टी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? Yes, sir. अब इसका मतलब ये है कि टी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगा, लोअर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें इट मीन्स क्या? Yes, इट sir. मीन्स टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखते हैं, s को s माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा s, इट इज इक्वल टू s, ठीक। u t पावर t माइनस 0, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? भाई देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या? s माइनस 0 लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. और इसको क्या लिखेंगे? u इंटू t को t माइनस 0, बोलिए, लिख सकते हैं। Yes, sir. प्लस a इंटू, Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर बाई 2 को, भाई t माइनस 0 का मतलब t, इसका थोड़ा सा समझिए, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे?
ब्रैकेट में ये हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन जब टी स्क्वायर को टी के साथ लेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखिए रफली आपको पहले रफली समझा। अब जब टी स्क्वायर बाई 2 ऐसा, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इसको, ये क्या बनेगा, बनेगा जब स्क्वायर के साथ टी लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 हुआ, माइनस, अब जब जीरो ले लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, जब जीरो ले लेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/2 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो Yes, हम यहाँ sir. क्या लिखेंगे, यहाँ भी वही चीजें लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 0/2, ठीक। यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0/2, ठीक है। ये टी स्क्वायर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, क्लियर। चलिए Yes, sir. it will be f is equal to t minus 0 means it will be ut plus, ओके, टी स्क्वायर माइन अपॉन 2 में 0/2 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो गया क्या, हाफ, हाफ बना, हाफ ए इंटू, अब टी स्क्वायर है ना, Yes, sir. हाफ ए टी का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टी का स्क्वायर, क्लियर। Square. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक, यही है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।